Hello everyone, very good evening all of you. This is lecture number 2 of stresses in beam. As you know that we have already started lecture number 1st of stresses in beam. In last lecture we have already covered the basic concept of stresses in beam, what type of stresses developed in beam and why stresses are developed in beam. So we have already covered the theory of simple bending in last lectures and what is assumption while driving the expression of stresses in beam. So in this particular lecture, we are going to cover the expression of stresses in beam, that is bending stresses in beam, or it is also known as the flexural formula. Okay, so let's start the lectures. So we are going to start the expression of bending stresses in beam as you saw here on the screen board. This is initial beam means before bending, and this is a beam after bending. Okay, as you see here, that is NN, that is the neutral axis. Okay, and that is EF we consider here at a distance y from NN. Okay, as same as this is a figure after bending, because after bending the beam is converted into curvature like that. Okay, so that is neutral axis, that is NN dash after bending. As you know that neutral axis before bending and after bending is constant, means there is no change between neutral axis before bending and after bending. That is the assumption of stresses which I already covered in last lecture. Okay, that is a arc after bending, that is also arc after bending, that is a considerable axis E dash F dash at y distance from neutral axis. That is a center of curvature, that is the center of curvature, that is a radius, that is the angle theta. Okay, that is the stress distribution diagram. Okay, so we have to find the expression of bending stresses in that particular lecture. Okay, so first we consider a small elemental length delta x. Okay, as you see above, as you see here, first let a small length delta x of a beam subjected to a simple bending. Due to action of bending, the part of the length delta x will be deformed as shown above in figure, like curvature. Let a dash b dash and c dash d dash meet at O, as I explained before. Let r is equal to radius of neutral layer n dash. Theta is equal to angle subtended at O by a dash b dash and c dash d dash produced. Okay, so dear students, अभी हम एक फार्मूला को ड्राइव करने जा रहे हैं, एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि बेंडिंग स्ट्रेस का है. इसके लिए मैंने सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लिया है. लेट एक्सप्लेन इन फिगर. ओके, सबसे पहले हम लोगों ने एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लिया है, क्योंकि किसी भी चीज को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ को कंसिडर करना पड़ता है. उसके बाद उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं. ओके, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लिया है. ये आपका बीम का इनिशियल एक्सिस है, बेंडिंग से पहले क्या है, बिफोर बेंडिंग. ठीक है, ये क्या है, आफ्टर बेंडिंग. ठीक है, तो एन एन क्या है, आपका न्यूट्रल एक्सिस है, और ई एफ हमने एक एक्सिस लिया है जो कि वाई डिस्टेंस पे है न्यूट्रल एक्सिस से. ठीक है, अभी आप समझिए न्यूट्रल एक्सिस मतलब ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, उसी को आप न्यूट्रल एक्सिस समझिए. ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको. तो उस न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे ई एफ लिया गया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये बेंडिंग के बाद का है. तो जाहिर सी बात है कि जब बेंडिंग होगा तो बेंडिंग के बाद में क्या होता है, ये जो है कर्वेचर का फॉर्म हो जाता है. ठीक है, ये कर्वेचर के फॉर्म में हो जाएगा. यहाँ से ई डैश जो एफ डैश है, मतलब डैश जो दिखा रहा हूं मैं, डैश ये जो पार्ट सेम है, बस डैश दिखा रहा हूं, ये आफ्टर बेंडिंग की बात है. एन एन मतलब और एन एन डैश है, एन एन डैश आफ्टर बेंडिंग, ई एफ बिफोर बेंडिंग और ई डैश एफ डैश आफ्टर बेंडिंग. और वो जो है क्या है, सेंटर है. ठीक है, मतलब दोनों एक्सिस का, यहाँ से इसका सेंटर है दोनों का. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और थीटा एंगल सस्टेंड है इस दोनों के द्वारा. ठीक है, ये एंगल का कितना एंगल सस्टेंड कर रहा है, यही चीज नीचे लिखा हो. ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या निकालेंगे. एक चीज आप बताइए, यहाँ पे ई डैश एफ डैश, यहाँ पे ई डैश और एफ डैश जो है उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ई डैश एफ डैश और एन डैश को कितना लिख सकते हैं. देखिए एन डैश जो है आपका, एक देखिए एन डैश यहाँ जो है ये क्या है, यहाँ से यहाँ
इसका हम लोग कैसे निकालते थे, एल बराबर आर इंटू थीटा, मतलब लेंथ ऑफ अगर आर्क निकालते तो कैसे निकालते थे, आर इंटू थीटा, ये निकालते थे हम लोग। तो ये जो आपको अगर लेंथ निकालना है एंडस एंडस की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, आर इंटू थीटा कर देंगे, एंडस एंडस बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। आप लोग पहले पढ़ते थे ना कि लेंथ, जो लेंथ निकालते हैं हम लोग किसी भी कर्व का, कैसे निकालते थे, रेडियस इंटू जितना एंगल सस्टेंड कर रहा है, तो बराबर आर इंटू थीटा। अगर वही ईडस एफडस का निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ आर में क्या करेंगे, वाई जोड़ देंगे, यही करेंगे ना। तो ईडस एफडस बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, आर प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा, थीटा। यही होता था ना, मतलब जो भी हम लेंथ निकालते थे आर का, कैसे निकालते थे, जो भी रेडियस हो रहा है उसका और इंटू जितना एंगल सस्टेंड कर रहा है उतना निकाल मल्टीप्लाई कर देते थे, तो एल बराबर आर इंटू थीटा। तो एंडस एंडस क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। जब ईडस एफडस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, आर प्लस वाई हो जाएगा, आर प्लस वाई इंटू थीटा, यही मैं समझा रहा था। ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, बाकी आगे मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए ई और एफ है। अब देखिए अब कोई पूछेगा कि कितना, मतलब चेंज इन स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हो रहा है ई एफ में, तो आप कैसे निकालेंगे, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो आपको चेंज इन लेंथ निकालना पड़े कि जो आपका इनिशियल बीम था ऐसे था और आफ्टर बेंडिंग ऐसे हुआ, तो चेंज कैसे निकालेंगे, जो फाइनली आपका ईडस एफ था और ई एफ पहले था, उस दोनों में से घटा देंगे, मतलब ईडस एफ डैश माइनस ई एफ करेंगे तो आपका चेंज इन लेंथ निकल जाएगा, मतलब ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ करेंगे तो ई एफ में कितना चेंजिंग आया है बेंडिंग के बाद में, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको अगर अब स्ट्रेन निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, स्ट्रेन, तो क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल लेंथ। तो जितना आपका चेंजिंग आया है, मतलब ईडस एफडस माइनस ई एफ कीजिएगा तो चेंजिंग लेंथ हो जाएगा, डिवाइड बाय में क्या कर दीजिएगा, ई एफ कीजिएगा, ई एफ ही तो ओरिजिनल लेंथ है ना, तो आपका स्ट्रेन निकल जाएगा। ठीक है, यही अभी हमको निकालना है, पहला काम हमको स्ट्रेन निकालना है इस फिगर में। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताना चाहता हूँ ताकि आप रटे नहीं, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सीखें। यहाँ करना यही है कि पहले हमको स्ट्रेन निकालना है, तो स्ट्रेन कैसे होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ई एफ जो है, ई एफ से ई डैश एफ डैश चेंज हो गया है, तो चेंज कितना हुआ, ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ। तो ई डैश एफ डैश कैसे निकलेगा, उस तरीके से, क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क है तो आर प्लस वाई इंटू थीटा माइनस, उस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, सब नीचे निकाला हुआ है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो यही दिखाया गया स्ट्रेन वेरिएशन अलॉन्ग द डेप्थ ऑफ बीम, कैसे स्ट्रेन का वेरिएशन हुआ है, यही चीज है। तो देखिए यहाँ पे कंसीडर अ लेयर ई एफ, जैसे कि मैंने बताया कि ई एफ लेयर कंसीडर किया गया है जो कि वाई डिस्टेंस से है एन एन से, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद में बेंडिंग के बाद में क्या हो गया, ये ई डैश एफ डैश हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। ई एफ जो है आपका, ये डेल्टा एक्स है, मतलब हम लोगों ने एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ डेल्टा एक्स माना। ठीक है, तो एन एन जो है हमारा, जो न्यूट्रल एक्सिस है, उसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये बिफोर बेंडिंग की बात हो रही है, यानी एंडस जो है और एन एन, देखिए एंडस जो है आफ्टर बेंडिंग के बाद न्यूट्रल एक्सिस है और एन एन बिफोर बेंडिंग है। तो मैंने बताया था कि बेंडिंग के बाद हो या बेंडिंग के पहले हो, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट होता है, चेंजिंग नहीं होता है। किसके बराबर हो गया, डेल्टा एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सब फिगर में, क्योंकि मैं फिगर नहीं दिखा पा रहा हूँ बार बार, लेकिन फिगर में आप एक बार देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस मैं एक बार इसको समझा करके ड्राइव कर देता हूँ। देखिए फिगर से एंडस की वैल्यू आप निकालेंगे, जैसे मैंने बताया एंडस क्या है, एक लेंथ ऑफ आर्क है, तो कितना होता है, आर इंटू थीटा होता है, तो आर इंटू थीटा हो गया। जब ईडस एफडस निकालोगे तो आर की जगह पे कितना हो जाएगा, वाई डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, आर प्लस वाई इंटू थीटा। देखिए बट एन एन डैश एंड दोनों क्या इक्वल है, ये बेंडिंग के बाद का न्यूट्रल एक्सिस है और ये बेंडिंग के पहले का, लेकिन दोनों के बराबर कितना है, डेल्टा एक्स के बराबर है। अब देखिए डेल्टा एक्स जो है किसके बराबर है, आर इंटू थीटा। डेल्टा एक्स किसके बराबर है, आर इंटू थीटा, क्योंकि डेल्टा एक्स एंडस के बराबर, तो आर इंटू थीटा। अब देखिए कितना इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है ईएफ में, तो जितना ई डैश एफ डैश मतलब बेंडिंग के बाद हुआ और पहले ईएफ था, दोनों को घटा देंगे तो यही निकल जाएगा हमारा चेंज इन लेंथ। मतलब ई डैश एफ डैश माइनस ईएफ करेंगे तो जितना चेंजिंग आया है लेंथ में वो हमारा निकल जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपका वाई इंटू थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको देखकर समझ सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए फिर पीडीएफ आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको स्ट्रेन निकालना है, तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ, कितना चेंज इन हुआ, चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ या डिक्रीज इन लेंथ जो भी है, इंक्रीज इन लेंथ है ये, डिक्रीज इन लेंथ है, मतलब चेंज इन लेंथ ही तो हो रहा है वहाँ पे, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन लेंथ लिखा गया, अगर डिक्रीज होता तो डिक्रीज इन लेंथ लिखा रहता। तो आपका इंक्रीज इन लेंथ हुआ वाई थीटा, और ओरिजिनल लेंथ आपका कितना था, ईएफ ही था ना, ये भी तो था ना, ईएफ के कारण ही तो ई डैश एफ डैश हुआ है, तो ईएफ ओरिजिनल था और ईएफ की वैल्यू कितना आ रहा था, आर इंटू थीटा। तो जब पुट करेंगे यहाँ पे ईएफ की वैल्यू कितना था, डेल्टा एक्स के बराबर था,
और ये बराबर क्या होगा, ये जो था हमारा लेंथ जो आर्क का था वो कितना था, आर इंटू थीटा। मैंने बताया था कि जो रेडियस जितना है और जितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। तो आपका आर इंटू थीटा हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वाई बटा आर आ जाएगा। ठीक है, ये बार कितना आ गया, वाई बटा आर। यहां तक भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्ट्रेन, जो स्ट्रेन का वेरिएशन तो पता चल गया, अब स्ट्रेस वेरिएशन। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे स्ट्रेस का वेरिएशन कितना हो रहा है, स्ट्रेस का वेरिएशन। तो देखिए आपको बताया थे कि यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जितना ईएफ में है डिवाइड बाई में स्ट्रेन जितना ईएफ में है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन ही होता है यंग्स मॉडुलस ना। तो ईएफ पोर्शन में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ईएफ पोर्शन में जितना स्ट्रेस है डिवाइड बाई ईएफ पोर्शन में जितना स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस के टर्म में ही जितना स्ट्रेन हमारा आया है ये कितना आया था, वाई बटा आर आया है। ऊपर में देखें आप लोग, इसको सॉल्व कीजिएगा तो सिग्मा बाई वाई बराबर ई बाई आर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर पहला है, याद रखिए सिग्मा बाई वाई बराबर ई बाई आर यहाँ से हमको मिला। ठीक है, कैसे मिला ये सब आपको पता चल रहा होगा, आप देख भी रहे हैं और मैं आपको समझा भी दिया हूँ। ठीक है, स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, और स्ट्रेस का वैल्यू हमको निकालना है और यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू वाई बटा आर ऊपर में आया है, इसको सॉल्व किया तो ई सिग्मा बाई वाई बराबर ई बाई आर हमारा वैल्यू आ गया। देखिए अब स्ट्रेन इन लेयर ईएफ जो था आपका, सॉरी ये डबल क्लिक हो गया है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये डबल क्लिक हो गया। ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा, इसे ऊपर वाला ये डबल है। अब आप देखिए यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप ये जो देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ जो बीम है आपका, यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम जो आपका है यहाँ पे, देखिए ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, इसमें हम लोगों ने एक एलिमेंटल जो है स्ट्रिप लिया है जो कि डीवाई, जिसका जो है जो स्ट्रिप का जो ये थिकनेस है वो डीवाई है, जो कि ये न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है। देखिए न्यूट्रल एक्सिस को आप सिंपली कह सकते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस के टर्म में भी आपको इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल एक्सिस ऑफ एनी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ बीम इज डिफाइंड एज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल लेयर विद द ट्रांसवर्स सेक्शन। जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है न्यूट्रल लेयर के साथ में ट्रांसवर्स सेक्शन साथ में, उसे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। इन अनदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं जनरली जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ कोइंसाइड होता है। तो आप जितना सेंट्रोइडल एक्सिस का वैल्यू होता है उतना ही न्यूट्रल एक्सिस का भी वैल्यू होता है। आप इतना एज्यूम करके बना सकते हैं, मतलब न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेंट्रोइडल एक्सिस से कोइंसाइड करता है। ठीक है, और आपको समझने के लिए यहाँ लिखा हुआ है द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ एनी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए बीम इज डिफाइंड एज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल लेयर विद द ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो जो आप फिगर देख रहे हैं ऊपर में हमारा जो वैल्यू आया है वो आपका जो सिग्मा बाई वाई बराबर ई बाई आर आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे फिगर में क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम लेट न्यूट्रल एक्सिस विद न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, एन क्या है यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस बीम है। हम लोगों ने कंसिडर किया है कि स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप लिया है डीवाई थिकनेस का जो कि वाई डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, यही यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए डीए जो है एरिया ऑफ द लेयर है, हमें अब वहां पे स्ट्रेस पता है, अब हमको अगर उस पर फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एलिमेंटल स्ट्रिप लिए हैं, टोटल एरिया नहीं होगा, वहां पे एलिमेंटल एरिया है, इसलिए हम डीए की वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा जो फोर्स निकलेगा डीएफ की वैल्यू सिग्मा इंटू डीए क्या होगा, सिग्मा इंटू डीए, क्योंकि हम वहां पे स्मॉल स्ट्रिप लिए हैं वहां पे, इसलिए वैल्यू हम डीए लिए हैं। अब हमको जब टोटल निकालना है तो आपको पता होगा जब हम स्मॉल एलिमेंटल लेंथ के लिए निकाल लिए, अब जब हमको टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे टोटल का वैल्यू आ जाएगा। तो जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा नीचे में, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आता है आपका ई बाई आर इंटू वाई इंटू ए आएगा। ठीक है, चलिए नीचे आपको दिखा देते हैं, ये फोर्स का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा, फोर्स का, मतलब उस एलिमेंटल जो स्ट्रिप है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए F बराबर आ गया आपका ई बाई आर इंटू वाई इंटू ए, ये आपका फोर्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम मोमेंट ऑफ क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको फोर्स पता चल गया तो आपको जितना डिस्टेंस पे लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, मोमेंट निकल जाएगा, या आप उसे कहिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको फोर्स पता है, ठीक है, फोर्स पता चल गया कितना है, ई बटा आर इंटू वाई इंटू डी ए।
अब देखिए ये जो एलिमेंटल आपका स्ट्रिप है कितना डिस्टेंस पे है, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है, तो आपको फोर्स भी पता है और डिस्टेंस भी पता है। जब उसको मल्टीप्लाई अब कर दीजिएगा तो वहाँ पे क्या पता चल जाएगा, मोमेंट पता चल जाएगा। लेकिन आपको वहाँ पे टोटल मोमेंट नहीं पता चलेगा, स्मॉल मोमेंट मतलब चेंज इन मोमेंट जो आपका है डीएम का वैल्यू निकलेगा। फिर वहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट की वैल्यू निकलेगी। क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लिए हैं, जब पूरा निकालना पड़ेगा तो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका स्मॉल एलिमेंटल लेंथ मोमेंट कैसे निकाले हम लोग, जो आपका फोर्स का वैल्यू है उसको वाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वही हम लोगों ने नीचे में यहाँ पे किया है। चलिए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे जो आपका फोर्स है, जो मोमेंट है निकाला गया है, कैसे निकाला गया है, देखिए यहाँ पे फोर्स ऑन लेयर इंटू वाई, जो ये लेयर है उस पर जितना फोर्स आ रहा है इंटू वाई, तो आपका जो फोर्स आ रहा है यहाँ पे देखिए, जो फोर्स आपका आ रहा है ई बाई आर इंटू वाई इंटू डी, यही फोर्स आ रहा था ना यहाँ पे आपका, ये वाला फोर्स आ रहा था। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, वाई से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोमेंट में चेंज हो गया क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट हो गया। अब टोटल मूवमेंट बराबर हो गया ई बटा आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब ये मूवमेंट हो गया। अब टोटल मूवमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा ई बटा आर और इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। देखिए यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, आपको एक चीज पता है कि एरिया का हम लोग डबल मूवमेंट लेते हैं। मतलब आप देखिए जो ऊपर स्ट्रिप लिए हैं डीए ही था ना, डीए का एक बार न्यूट्रल एक्सिस के मोमेंट अबाउट मोमेंट लिए तो कितना हो गया डीए इंटू वाई। जब डबल मूवमेंट लेंगे एक अबाउट न्यूट्रल एक्सिस को, क्या हो जाएगा डीए इंटू वाई यानी डीए इंटू वाई क्या स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने यही बताया था ना, क्या बताया था मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डबल मोमेंट ऑफ एरिया। तो चूंकि यहाँ पे देखिए ये चीजें बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वैल्यू है ये है वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, तो डी ए क्या है, स्मॉल एरिया है, उसका एक बार मूवमेंट लिए तो डी ए इंटू वाई, फिर दोबारा मूवमेंट लीजिए तो क्या हो जाएगा डी ए इंटू वाई यानी डी ए इंटू वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे एरिया का डबल मूवमेंट है। तो इस पूरे टर्म को यहाँ पे हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ये समझना जरूरी था। तो ई बटा आर इंटू क्या हो जाएगा आई, सिर्फ सिंपली क्या हो जाएगा ई बटा आर इंटू आई। ठीक है, ये चीज समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इतना आपको समझा रहा था। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नीचे जो हमारा जो डेरिवेशंस आया है इसको सॉल्व करने के बाद में, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका आया है m बराबर ई बाई आर इंटू आई, यानी कि यहाँ पे हम आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो m बाई आई बराबर ई बाई आर आएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये सेकंड नंबर, और इससे पहले हम जो सॉल्व किए थे उसको 1 माने, तब दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो आपका फाइनल बेंडिंग इक्वेशन आएगा यहाँ पे सिग्मा बाई वाई इक्वल टू m बाई आई बराबर ई बाई आर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। व्हाट, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। ठीक है, दैट बेंडिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। कीप दिस थिंग इन माइंड, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू m बाई आई इक्वल टू ई बाई आर, और जहां पे इस तीनों में से किसी दो की जरूरत है वहां पे हम इस दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको सिग्मा निकालना है, वाई पता है, m पता है और आई पता है, तो वहां पे सिग्मा निकाल लीजिए। अगर आपको यंग्स मॉडुलस पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, एम पता है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है तो आई निकाल लीजिए। मतलब इसमें से जो भी आपको निकालना है, किसी तीन टर्म को पता है, चौथा टर्म निकालना है, तो आप इस टर्म से, इस फ्लेक्सुरल फॉर्मूला से, इस बेंडिंग इक्वेशन से आप उसको निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। ये बेंडिंग थ्योरी ऑफ बेंडिंग सॉरी स्ट्रेसेस इन बीम का ये सेकंड लेक्चर है, और मैंने इसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको कवर किया है। आप लोग किसी भी लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक लेक्चर का जो रिलेशन होता है अगला लेक्चर से होता है। अगर आप एक लेक्चर को नहीं समझेंगे तो अगले लेक्चर को भी नहीं समझ पाएगा, है ना। तो इसलिए आप हर एक लेक्चर को देखें और हर एक लेक्चर की पीडीएफ को पढ़ें और उसको नोट्स, उसके नोट्स को कंप्लीट करें। ठीक है,
होप कि इससे पहले जो भी आपके लेक्चर्स कराए गए हैं और वहाँ पे जो भी पीडीएफ्स है या जो भी है आप उसको करते रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग ये कर रहे होंगे। कहीं भी प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं भी डाउट्स है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये आया सिग्मा वाई वाई इक्वल टू एम बाई आई बराबर ई बाई आर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है सिमेट्रिकल सेक्शन में। सिमेट्रिकल सेक्शन मतलब होता है कोई सर्कुलर सेक्शन, सिमेट्रिकल के बारे में मैंने बताया था, कोई सर्कुलर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, बट अगर हम उसको किसी भी एक्सिस के अबाउट फोल्ड करें तो क्या हो, कवर कर ले, ठीक है। मैंने इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही ऑलरेडी बता दिया था कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल सेक्शन की मोमेंट सिमेट्रिकल सेक्शन की बेंडिंग स्ट्रेस की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो फिगर है यहाँ पे मैंने सिंपल एक यहाँ पे एक आपका रेक्टेंगुलर बेम लिया है। और यहाँ पे देखिए इसका जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो टॉप से d/2 पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आपको देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो जहाँ पे जनरली सीजी होता है वहीं पे इसका न्यूट्रल एक्सिस लाइज करता है ना। इन अदर वर्ड्स आप इसको बिल्कुल याद रख लीजिए, जहाँ पे इसका सीजी होगा वहीं पे इसका न्यूट्रल एक्सिस लाइज करेगा सिमेट्रिकल सेक्शन में, ठीक है। तो डेप्थ डी है और विड्थ बी है, यहाँ पे मान लीजिए विड्थ बी है। देखिए ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे क्या दिखाई दे रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, 0 है। और जैसे ही आप इससे ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ये बढ़ते बढ़ते जा करके टॉप मोस्ट फाइबर पे यहाँ पे मैक्सिमम हो जा रहा है। एक चीज याद रखिएगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है और नीचे में क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है। और नीचे देखिए यहाँ पे भी आपका बढ़ते बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे आगे मैक्सिमम हो जा रहा है। लेकिन नीचे में यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम है, यहाँ पे टेंसाइल, और यहाँ पे क्या, कंप्रेसिव। और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। एक चीज याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है और आउटर मोस्ट फाइबर में, आउटर मोस्ट फाइबर कहने का मतलब है ऊपर वाला पार्ट या यहाँ पे नीचे वाला पार्ट, आउटर मोस्ट फाइबर में बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में इसको याद कर लीजिए, न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 और आउटर मोस्ट फाइबर पे न्यूट्रल एक्सिस, आउटर मोस्ट फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसी चीज को मैंने नीचे में नोट में लिखा है, तो आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा उस नोट्स को, और इसकी पीडीएफ को आप लोग अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैंने जितने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे से हो पाया है मैंने आपको बताया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ से मैं बिल्कुल आपको इसका जो सोल्यूशन है मैं प्रोवाइड करूंगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैं तो बिल्कुल आपके लिए बताते चलता हूँ कि आप ऐसे कीजिए, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं करना आपको है, ठीक है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको चीज़ों को बता सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियोस में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, आपको इस वीडियो से, और बहुत कुछ आप सीखे होंगे। तो इस वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो नीडीज स्टूडेंट है, जिनको इस वीडियोस की ज़रूरत है, जो आपके फ्रेंड्स कहीं और भी पढ़ते हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको इस वीडियो लेक्चर से हेल्प मिल जाए। मैंने वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही बेंडिंग स्ट्रेस वहाँ पे होगा। और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा जो आउटर मोस्ट फाइबर होगा वहाँ पे होगा, और न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होगा। और न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या, जो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है सिमेट्रिकल सेक्शन का, वही न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है। तो आपका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी मैंने बता दिया, सॉरी हाँ, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यानी बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मुझे लगा कि उसको बताना चाहिए आपको, मैंने हर चीज़ बताया है। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत सारे नए अजीब कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा जानने को। So this is last part of my video lecture. So thank you everyone. So stay tuned. God bless you all.